Namaste. My name is Sonam Yanti. I am doing my English at Government Medical College, Nagpur. Right now I am posted at the dermatology department. I'm sitting with our head of the department of dermatology, Dr. Ashwin Kumar, and our senior resident, Dr. Pradeep Shukla, and my co-intern, Sumari Sarpur. Today we are having a general discussion and awareness about the ongoing quacks and about the beauty products and skincare products and hair products that's going on social medias and everywhere. So let's have a great opinion and राय लेते हैं अपने सर से कि वो क्या बताना चाहते हैं इन चीजों के बारे में. First question. So in today's scenario where everyone is being specialist and spreading false information, so what are your views about this? Hello everyone. The question is very important question. And there is a lot of false information regarding skincare. So in today's scenario, if somebody is doing some job, he is imparting knowledge and that knowledge is not correct and that is not false. For every problem, there is a solution. For that solution, should consult a specialist. In our field, in dermatology, people take medicine from a lot of other people, from peers, from chemists, but instead of that, they should consult a specialist for their skin care and skin problems. So my second question is, what is the impact of hair oil on hair growth? Frankly speaking, there is no role of hair oil for hair growth. It is being used and it is just a misconception. Hey, your hair looks good, excellent when you apply oil, but it is not good. Should not use any form of oil. The only oil which is recommended is coconut oil. Other oils, they are just a cosmetic purpose. So there is no need to a lot of specious gland over your scalp. So they just the hairs. So we don't need extra oil for this. So जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछना चाहते हैं कि जैसे आजकल सोशल मीडिया में आप देख सकते हो कि इंस्टाग्राम होते हैं, सोशल मीडिया फेसबुक में, तो मैक्सिमम जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो ब्यूटी होते हैं, स्किन अच्छी होती है, इसमें बाल अच्छे होते हैं, तो वो लोग जो है वो रिकमेंड कर रहे होते हैं बेस्ट प्रोडक्ट्स. तो फिर ये क्या सबको इक्वली बेनिफिशियल है कि लाइक इन विच सम. इसमें मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि अगर कोई इंसान को इंडियन है, उसकी स्किन क्वालिटी अच्छी है, वो कुछ एडवाइस कर रहा है, he may not be using that. Okay, वो जो एडवाइस देनी है आपने उस इंसान से देनी है जो उसके स्पेशलिस्ट है. And looks, they are very deceptive sometimes. So you should not go for looks, you should go for quality, and that quality comes from a degree. So जो एमडी स्पेशलिस्ट हैं इन डर्मेटोलॉजी, आप उससे ओपिनियन लीजिए, उसकी गाइडेंस को प्रॉपर गाइडेंस मानिए और उसको फॉलो करें. Next question is what is the role of hair serums and beauty products in dermatology? Basically, serums हैं, they are right from two things. Either they are plant origin or animal origin. So hair serum, they are not FDA approved for any disease or for any nutrition. It's just a commercialization. So I personally don't recommend any serum over your skin or over your hairs. So they are not recommended and they are not FDA approved also. So my next question is, जो commercial beauty products available है मार्केट में, तो उनका क्या रोल है dermatology में? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी कमर्शियली अवेलेबल ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, दे आर जस्ट फॉर मार्केट प्लेसेस पे चीजें ओवर द काउंटर अवेलेबल हो जाती है. उस प्रोडक्ट में क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी डिफाइंड नहीं होगी और बेसिकली क्या, एनीथिंग यू अप्लाई ओवर स्किन इट बिकम्स अ सनस्क्रीन. But in my recommendation, you should not go for beauty products. Your normal skin tone is okay. You can only use only one thing, that is one simple face wash and sunscreen. So we normally don't do that, and we should not go for that. There is just a market. Cosmetic market is a very huge market. A lot many things are coming. आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपके स्किन टोन अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ होता नहीं है. These things they are decided by your genetics and environment. Only two things you can do. The first is you can apply proper sunscreen and you can use a face wash. That's it. What is the role of nutrition in good skin? देखिए जो भी डाइट हम देते हैं या जो भी डाइट हम रिकमेंड करते हैं, तो बेसिकली इसके क्राइटेरिया बने. यू शुड गो फॉर अ बैलेंस डाइट. और जो बैलेंस डाइट में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं. देयर इज नो स्पेसिफिक फूड वो आपको लेना चाहिए. फूड रिच इन विटामिन, all foods or all fruits which are rich in vitamins
you can take them. But ऐसा कोई specified नहीं है. Likewise, in some diseases like psoriasis, we recommend omega-3 fatty acid. वो कहाँ से आएंगे? आप उस चीज को ले सकते हो, फिश से आते हैं, तो you can go for fish. Basically, बहुत ज़्यादा misconception है diet in dermatology. So, it is right for every system. For every system is important. And our skin is the largest system of our body. हमारी स्किन जो है हर चीज को प्रोटेक्ट कर रही है. फर्स्ट लाइन डिफरेंस. तो इस फर्स्ट लाइन को डिफरेंस को ठीक रखने के लिए यू शुड गो फॉर बैलेंस डाइट. आप फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए ना, आपके सीजनल वेजिटेबल्स हो गई, प्रोसेस्ड फूड्स जो आप अवॉइड करने हैं, प्रोसेस्ड फूड्स लेने हैं, जो ये फ्रिज्ड होते हैं, डीप फ्रीज वाले फूड्स आपने अवॉइड करना है. और हमेशा यही आप रहना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्ट पैदा होते हैं दे आर ऑलवेज गुड फॉर अस. अब हमारी इतनी जनता है तो वी कांट हैव एवरीथिंग एट ऑल द टाइम, पर जो भी हमारे लोकली अवेलेबल चीजें हैं वी शुड नॉट ट्राई फॉर इट एंड दे आर गुड फॉर अस. So my next question is regarding acne, pimple जो आप लोग बोलते हो, बहुत कॉमन जो लोग सब करते हैं इससे. तो इसमें जो है डाइट का क्या रोल है और क्या रिकमेंड करना चाहते हैं आप लोग? बेसिकली जो एक्ने है कोई पर्टिकुलर एज होती है, टीनेज में शुरू होते हैं एंड सम टाइम अडल्ट में भी हो जाते हैं, मोर देन 30 इयर्स. जो हमारी ये वाली एज होती है इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में हार्मोन चेंज होता है. उस हार्मोन चेंज की वजह से हमारी बॉडी में ऑयल बनता है. ऑयल नहीं होता है स्पीशियस डेप्स. तो ये सोसाइटी में या लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि ज्यादा ऑयली फूड खाने से या ऑयली डाइट लेने से हमारे पिंपल्स बढ़ते हैं. पिंपल्स एक्ने एग्रीवेट होने की और फैक्टर्स, बट ऐसा नहीं स्पेसिफाइड हमारी बुक्स में नहीं लिखा है और हमने भी देखा है कि किसी पर्टिकुलर डाइट लेने से ऑयल हमारे जो स्पीशीज ग्लैंड्स हैं जो ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे हमारे पिंपल्स बनते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता है. एक कुछ मैंने स्टडीज आई हैं उसमें लिखा है कि जो लैक्टोज होता है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे कहीं लिखा है कि पिंपल्स बढ़ सकते हैं. लेकिन ये डिपेंड करता है हमारा जेनेटिक्स क्या है, टाइप ऑफ स्किन क्या है, उस पर डिपेंड करता है. तो फूड का ऐसा कोई ज्यादा रोल नहीं है एक्ने होने में, ठीक होने में भी और बढ़ने में. सो दिस इज जस्ट अ मिसकंसेप्शन. सर अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और हेयर फॉल का क्या रिलेशन है? देखिए, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है या जिसको हम डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, इसका रिलेशन है हेयर फॉल के साथ. तो मैं चाहता हूँ हमारे लीग है डॉक्टर गोविंद शुक्ला, जैसे कि डिपार्टमेंट दिस क्वेश्चन. थैंक यू सर. बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं आजकल, ओबीस पेशेंट आते हैं, उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है यंग एज में, तो मैं उनमें हेयर फॉल काफी कॉमन होता है. तो आजकल ये देखा गया है पैटर्न कि अगर जो भी पेशेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसको या हाई फास्टिंग इंसुलिन लेवल है तो उसके हेयर फॉल काफी इंक्रीज है. अगर वो अपने जो फास्टिंग इंसुलिन लेवल है उसको कम कर देता है या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कम करता है या फिर एक्सरसाइज जैसे भी कम करता है तो उसके हेयर ग्रोथ वापस आ जाती है. तो यस, देयर इज अ रोल, there is a relationship between the insulin level, fasting insulin level and hair fall. There is a definitive role. If we cannot manage, one should control his blood sugar, and should go for a daily exercise. Now let's come to the conclusion. As I'm a intern doctor at Wellington Naval, so बहुत सारे इंटर्न हैं मेरी तरह जो अभी कंफ्यूज हैं कि हमने अब आगे क्या करना है. सो मैं अब सर से राय लेना चाहती हूँ कि मुझे कौन सा फील्ड लेना चाहिए. वैसे तो मैक्सिमम तो स्टूडेंट्स वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं, बट कुछ बच्चे जो है डर्मेटोलॉजी लेना चाहते हैं. और आप लोगों को और क्या बताना चाहते हैं कि वो डर्मेटोलॉजी क्यों लें और क्यों बेहतर है? वो जो इंटर्नशिप का पीरियड होता है इसमें पीपल विल नॉट एबल टू डिसाइड किस फील्ड में जाना है. तो मेरी ओपिनियन है, सलाह है कि वो जब इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे देन दे विल डिसाइड कि स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, उनका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में और कौन सी फील्ड को लंबे टाइम तक कैरी ऑन करना चाहते हैं ताकि उनका पूरी उम्र इंटरेस्ट बरकरार रहे और जिस फील्ड में जाए उस फील्ड को जस्टिफाई कर सके. सो इट इज योर पर्सनल चॉइस, डिपेंड करता है. दिस इज लॉट ऑफ कंपटीशन, एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें दो तरह से लोग डिसाइड करते हैं. एक होता है पीपल चूज, एक होते हैं पीपल डिसाइड बाय चांस. आपने एग्जाम दिया, आपने सोचा मैंने चाइल्ड जस्टिस बनना है, डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है, सर्जन बनना है, मेडिसिन वाली फील्ड देखनी है, ऑफलाइन देखनी है. लेकिन जैसे ही आपका रैंक आता है उस हिसाब से आप चांस ले लेते हो. तो वो चांस डिपेंड करता है आपका स्ट्रेंथ उसमें है कि नहीं. अदरवाइज यू कैन गो फॉर अगेन आप दोबारा नहीं कर सकते, पढ़ सकते हो, क्योंकि जो फील्ड है थ्रू आउट लाइफ
आपके साथ चलेगी, इट विल पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, सो यू हैव टू चूज वेरी वेल। एंड इसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो आई थिंक इज अ यंग पर्सन, यू कैन गाइड बेटर। प्लीज। थैंक यू सर। सबसे पहले अगर आपको कोई ब्रांच चूज करनी हो तो सबसे पहले आपको अपने बिहेवियर के बारे में समझना होगा कि किस टाइप ऑफ पर्सन यू आर। जो पर्सन जिनमें थोड़ा पेशेंस कम होता है उनको सर्जिकल फील्ड से थोड़ा दूर रहना इम्पोर्टेंट थिंग। देन आप अगर आप गुड थिंकर हैं, साइकेट्रिक तरफ आप जा सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग फील्ड को अपने आप जब आप अपने बिहेवियर समझ जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको किस कौन सा फील्ड आपको सूट करेगा। सेकंड थिंग, कभी इस तरह से आपको नहीं जाना है कि कोई ब्रांच ऊपर जाती है कोई नीचे जाती है उसके साथ आपको चूज करें कि कोई ब्रांच ऊपर गई तो मैंने ये ले लिया या ये हुई तो वो ले लिया। अगर आप उस जो आपको ब्रांच लेनी है उस ब्रांच को आप वापस रीटेस्ट दो, आप उसी की तरफ जाओ, क्योंकि एक बार आपके साथ ब्रांच हो गई तो लाइफ टाइम आपको उसी फील्ड में काम करना है। अगर आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में नहीं होगा तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, चाहे कोई भी ब्रांच। नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का कि डब्ल्यूएचई का क्या है, एक इंटरेस्ट होता है नीट पीजी, आप उसको दोगे, उसके बाद काउंसलिंग में आप के पास आते हैं, फिर आप डिफरेंट कॉलेजेस में आप काउंसलिंग सीट्स भरोगे, ऑनलाइन सीट्स होती हैं। उसके बाद आपका प्रेफरेंस होता है कि पहले अगर आपको दिल्ली मुंबई करना होगा, दिल्ली मुंबई या जिस कॉलेज का प्रेफरेंस है, जिस कॉलेज को आप सबसे पहले जाना चाहते हैं, जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं उसका प्रेफरेंस वो में आपको भरना है। अकॉर्डिंग टू दैट अगर आपको अवेलेबल हो तो सीट मिल जाएगी। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much.